So was there any inspiration behind carrying this role, and were there, like, there are many veterans who have carried the gangster role in Bollywood. So was there any inspiration you took to prepare for this role? No, not really. Not from any actor, I would say that actor was played a character like this. It was all from our imagination only. The world that Pulkit created, in his writing, it was very much there. And whatever we have seen on television, some real people, that the inspiration was from the real people. And then a lot of it actually comes out from within. When you start reading it again and again, a lot of it, you start seeing the character, you start seeing the body language, the voice, you start hearing it. So it all came from there, not from any one particular actor, I would say. DNA सबको मुबारकबाद, क्योंकि ट्रेलर वाकई शानदार है। राजभाई, मेरा सवाल है, कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी बनती है मालिक के कैरेक्टर में और आपके कैरेक्टर में। वो बोलते हैं हम पैदा नहीं है तो क्या बन तो सकते हैं। आप इस डायलॉग से कितना वाकिफ होते हैं, क्या कितना एक राब्ता रखते हैं? बिकॉज आप भी बीइंग एन आउटसाइडर, यू केम, यू सॉ, यू कॉन्कर्ड, तो एक तो कहीं ना कहीं तक सिमिलैरिटी, अपार्ट फ्रॉम ऑल द मार धाड़ एंड ऑल। आई थिंक वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो हम सब के लिए लाजमी होता है वो डायलॉग, क्योंकि हम सब जो है सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं हुए। बहुत सारे 99.99% लोग, तो हम सब में वो काबिलियत है कि अगर हम पैदा नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, हम बन सकते हैं। तो ये जो थैंक यू। तो ये डायलॉग जो है, ये सिर्फ मालिक का नहीं है, ये डायलॉग हम सबका, आप सबका है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जहां से आए हैं उससे बेहतर बनना चाहते हैं लाइफ में, तो हम सब के लिए ये डायलॉग। सौरभ शुक्ला सर, आपसे एक सवाल है मेरा। सर यहाँ पे सर, आपको हम जब भी स्क्रीन पे देखते हैं इंस्टेंट स्माइल आ जाती है। आप जब इवल कैरेक्टर भी करते हैं तो मजा आता है देखने में। रेड 2 हमने भी पीछे देखी है, ये मालिक आ रही है, जॉली एलबी 3 आ रही है। तो जिस तरीके से आपका करियर ग्राफ जा रहा है, बिकॉज एक हमारी एक याद थी कल्लू मामा, नाउ यू आर प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस फेज ऑफ योर करियर? ब्यूटीफुली, आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मुझे ज्यादा पता नहीं लगता यार दोस्त, मतलब वो जिंदगी चलती रहती है, जो होता रहता है उसमें। I really think that I've been very very lucky that I got to do good films, because for me, मेरे perspective में actor अकेला कुछ नहीं होता है। You're a part of a good film and that's why your character shines, and if there are other great actors then you also get included in that. So मेरे लिए बहुत ज़्यादा complicated नहीं है, simple सा है लाइफ में। पहले कल्लू मामा था और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स उस वक्त भी कर रहा था मैं, अब भी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है, आई एम स्टिल वर्किंग। People like me, and when they say that a smile comes on their face and they like my evil things also, nothing makes me more happy. I can do more evil things now. Going off glam also for this role, and now when we are seeing you on screen with him, the chemistry itself is spoken a lot on social media also. You both are going viral. How was it working for this one and going like off glam and working with Rajkumar, because it could be intimidating as well while doing certain scenes? Well, I'd say that firstly, I don't know, Pulkit, if it's okay if I talk about when we signed the film. I don't think Pulkit, I'd say as a director when he and a writer when he wrote the character, like I said, I was not the natural choice for the film, because I think no one's ever seen me in this role, in this kind of a character. So luckily I got the opportunity to test, let's just say that, and I guess that worked out. But I'd say ki working with everyone on the film, the world is very real. We were working in real locations. That helped. When you go to these places, you understand their way of life. You understand how you can build on that character, because there's an internal work that you do, and then there's externally understanding the body language, being able to speak that dialect. So there's a lot of prep that goes into that as well. But when you're in this environment where everyone comes prepared, where everyone has this layered character that they are playing, which has a certain impact on the plot of the film, then automatically, it kind of even adds to what your prep is for that character. For me, as much as a surprise it might have been for you to see me in this role, it was a surprise for me to be able to play this role and to be able to live that life and go through the journey of playing this character.
So I'd say a lot of help from everyone around, and I found it exciting. I feel like, as an actor, you want to do different things, you want to explore, you want to be able to try new things, learn as much as you can, and when you get something very different, it's an opportunity. More than feeling nervous, I was excited because it was an opportunity. Of course, the very first day of shoot, when we were all on set, and it was not a scene with just like me or just Raj and me. There were many actors, and all of these actors are wonderful. And I was hyperventilating, very nervous, and I think, and I had this dialogue in that scene. And I was like, oh my God, what if I don't do what I'm supposed to do? What if I don't do it the right way? Because again, it was the first time I was doing it. But I think we just started shooting and everyone just made it so seamless. Once that whole energy is there on set where everyone's come with that one goal, it just makes your life as an actor easier. So the first day I was quite nervous, and then I was a part of that world. Hello, Kumar sir. 11 तारीख 11 तो सीधा क्लाइमैक्स ही पूछ लिया मैंने। क्लाइमेक्स नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे डिफरेंट है ये मालिक। मैं 11 तारीख को आपको बताने आऊंगा पक्का। कॉल करते हैं। मालिक के एंड पे नहीं जाते हैं, अभी मालिक की शुरुआत हुई है, तो अभी आप जर्नी देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। क्या होगा वो आपको मालूम चलेगा, लेकिन मजा बहुत आएगा, इसकी गारंटी। Hi Raj, Amar from Pop Diaries. I want congratulations for the trailer. I want to ask about the last scene which we saw. It looked very intense and scary, and you were in your element. Can you tell something about that scene which you can talk about right now? How many takes did you take? There weren't too many takes actually. It was I'm a very impulsive actor. I don't really prepare how I'm going to do my scene. I of course think about the situation and the other characters, the environment, but then I just go with the flow. So it was the first take only, and we started doing it, and because once you understand the character, the situation that he or she is in, then it becomes very natural for me. So I was just doing it, and I didn't know what was happening because how close was the camera, and then Pulkit saw it, and he's like, भाई ये कुछ हो गया है, इसको थोड़ा और जमा के करते हैं अभी। It's like, अच्छा क्या हुआ है? Because you don't know, because you're just performing. It's the camera, the technique of it. But then I think we did it, I think 2-3 times. But yeah, I think something happened there. Yeah, it was something that I've also not experienced before as an actor. That to emote so much in a single shot. But yeah, it was all Pulkit. He designed the shot that way. We were supposed to do something else, and he planned it. Let's do this one. So yeah, credit goes to him. Definitely left him. नहीं, credit goes to him only. जय, आपके राइट में अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर। Yes, watching. 11 तारीख 11 तो सीधा क्लाइमैक्स ही पूछ लिया मैंने। क्लाइमेक्स नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे डिफरेंट है ये मालिक। मैं 11 तारीख को आपको बताने आऊंगा पक्का। कॉल करते हैं। Two of you, Bhumada spoke about how much he loved, doing this with his younger brother, that is you. And I know that you both of you have a great camaraderie. But for both of you, what was the experience like working with each other? And what was the bond connection, so to speak? Bond connection तो आपको पता ही है, पत्र लेखा is the bond connection. खाना भी था क्या उसमें या नहीं? नहीं, इस सेट पे इतना नहीं था because हम दोनों I think because इतना जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो एक साथ बैठ के खाना खाने वाले लोग हैं नहीं। बट आई थिंक बुम्बादा के साथ काम करके हमेशा बहुत मजा आता है। बिकॉज मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है जिन लोगों ने के साथ काम किया है, दे ऑल हैव ओनली गुड थिंग्स टू से अबाउट हिम। ऑफ कोर्स ही इज phenomenally talented, that we all know, but as a human, as a person, he is such a beautiful soul, and that's what we look for also in actors when we work with them. कि आप अच्छे एक्टर हो बहुत अच्छी बात है, पर क्या आप अच्छे इंसान भी हो, because वो भी बहुत मायने रखता है। And I'm very glad that he said yes to this film because it's a character, it's a part that not many people have seen him playing a part like this in past. So I'm very excited for people to see him also in this avatar. But of course, बहुत कमाल के एक्टर्स तो हैं ही हमारी फिल्म में, बाकी सब भी, लेकिन बुम्बादा ने स्पेशली जो एक प्यारा सा तड़का लगाया ना इस कैरेक्टर में, that is really beautiful.
হ্যালো দিস সাইড বিদিশা ফ্রম সংবাদ প্রতিদিন। আমার প্রশ্ন বুম্বাদাকে, সেটা হচ্ছে যে বাংলায় তোমাকে পুলিশের ছবিতে দেখেছি প্রবীর রায়চৌধুরী, এখানেও দেখে মনে হচ্ছে ওইরকমই একটা কিছু। তো Why do you need to talk in Bengali? আমি বাংলায় কথা বলছি। That's okay, we'll Okay. তো আমি জানতে চাইছি যে এই চরিত্রটা কতটা আলাদা তোমার বাঙালি পুলিশের থেকে, আর যেহেতু রাজ একটা বাঙালি চরিত্র করবে, সৌরভ গাঙ্গুলি, তোমার কি মনে হয় ও কিরকম করবে? दो बातें पूछी उन्होंने कि ये कैसे अलग है, आपने जैसे कैरेक्टर इससे पहले बंगाली सिनेमा में किया वो इससे कैसे अलग है, और राज जो गांगुली की बायोपिक कर रहे हैं वो आपको क्या लगता है कैसे करेंगे? ये बहुत ही खुशी की चीज़ है। मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, स्पेशली माई वन कल्ट कैरेक्टर विच आई हैव डन वाज बाइशर श्रावण, एंड देन आई डिड prequel called Dosham Avatar, which is a cult character for Bengali cinema. People remember me for that, Prabir Rai Chaudhary. But I think for this particular character, yes, it's an officer. It's maybe swag hai, but I don't want to talk much about it because I think it's another 10-11 days. So I think people should come in the theater and see all of us. But we can assure you, every characters have a lot of twist, turn, and something to contribute. So and about Saurabh Ganguly, I think 10 days back, me and Saurabh, we were in an event. We were the chief guest. So I was so happy. I hugged him and I told him I'm going to meet Rajkumar. I told him that I'm doing a film and it's going to get it released. So I'm very happy that Ganguly and Raj together. It will be a great combo. And one of my favorite director, Vikram. So yeah, so I think it will be a great film. Hello everyone, Disha this side from Filmy Gyan. What is this madness? The last scene, I'm still hooked. मुझे मतलब उन्होंने पूछ लिया, बट मैं ये क्लेम करने वाली थी, मुझे लग रहा था that was one take, I guess, and you said it correct. But Raj, coming to you, कैसा लगता है when you are in that short list of people who can pull off the audience in the theatre? Because the business now is very fickle, and you've been doing some great amount of work, and you are able to pull off people into the theatre. So what is that feeling? No, it's not only me, it's the film, it's the story, it's the director. Nobody can claim that I pull off the audience to the theatres. I think we're not living in those times anymore. It's the film. I think film speaks for itself. And I'm very fortunate कि मुझे ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिलता है जहाँ पर मेरे पास एज एन एक्टर बहुत करने को होता है, और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस आज दे आर वेरी स्मार्ट. दे कैन रियली मेक आउट कि आपने सिंसियरिटी से अपना काम किया है कि नहीं किया है, एंड दे कैन मेक आउट द ट्रेलर कि यार ये फिल्म मुझे देखनी है कि नहीं देखनी, बिकॉज इसमें अच्छे लोग लग रहे हैं, अच्छी कहानी लग रही है, परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है, देन दे डिसाइड देन एंड देयर. तो आई थिंक आई एम वेरी होपफुल कि मालिक में वो बात है कि लोग देखेंगे और बोलेंगे कि वाह ये कुछ नया आया है, ये इससे पहले हमने देखा नहीं है, और मैंने इससे पहले ऐसा कुछ किया नहीं है. सो आई एम वेरी होपफुल कि 11 जुलाई को थिएटर्स में सारे जो है मालिक देखने आएंगे, और सारे ये मालिक जो है ये अपने एक और मालिक को देखने आएंगे. डेफिनेटली मालिक तो है ही आप, बट रियल मालकिन तो वहाँ बैठी है. थैंक यू मालकिन तो वहाँ बैठी है. हाउ रिफ्रेशिंग वाज इट वर्किंग विद मनुषी? हाउ रिफ्रेशिंग वाज इट? या It was very nice. I think she is as I know वो बोल रही है बार-बार कि not many people think of her to do these T-clam parts, but I think she's got such an amazing Indian face. I think she should do more of such part because she's very earthy. She's from Haryana, so एक वो language का बहुत ही उनको पकड़ है, हिंदी का बहुत आसानी से आती है उनको. So I think she really suited the part very well, and then she worked really hard for it. And what you see on the screen now, eventually on 11 July, you will be really amazed with her performance, because nobody, as she said, nobody expected her to play a character like Shalini. Hi, Thank you. Rajkumar sir. Last question. Sir. Hello. So I just want to So 1 second. इतना अच्छा आपने हमें ये ट्रेलर दिखाया, तो फिल्म तो बहुत ही अच्छी होगी. पूरी टीम को पहले बधाई. पहला सवाल मैं आप राजकुमार जी और सोनम जी आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अभी उन्होंने सौरभ जी ने कहा कि जब आपका को एक्टर बहुत अच्छा हो तो काम आसान हो जाता है. पर्दे के पीछे काम करना और स्क्रीन पर
इतने दिग्गजों एक्टर के साथ आप भी एक रहे हैं सिनेमा में बहुत साल से, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म को लेकर? सच में मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है इस फिल्म को लेके, दिग्गज एक्टर देखिए, मैं एज एन एक्टर कभी बहुत, अगर मुझे पता होता कि मैं एक्टिंग करूंगा तो थोड़ा जवानी में कर लेता, लेकिन मुझे एक्सीडेंटल एक्टर हूँ मैं, मुझे बनाया गया एक्टर पुलकित जैसे लोगों ने पकड़ पकड़ के, तो मेरे लिए तो ये एक एक आदमी के साथ काम करना एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। एक एक आदमी के साथ, राजकुमार के साथ काम करना मतलब उनका डेडिकेशन जो है वो मतलब कितना भी बूढ़ा आदमी वो सीखना चाहिए उसको, क्योंकि द वे ही गेट्स इनटू द कैरेक्टर, द वे ही गेट्स अंडरस्टैंड्स द कैरेक्टर, द वे ही लिव्स द कैरेक्टर, ही जस्ट ट्रांसफॉर्म्स। मतलब कुछ होता है और वो बिल्कुल पूरे के पूरे बदल जाते हैं, और हमने देखा है उनको अक्रॉस द फिल्म, इस फिल्म से लेके इस फिल्म तक। मालिक को लेके भी हम लोग मतलब मैं भी इसमें था कि एकदम गैंगस्टर फिल्म में तो कैसे होंगे, लेकिन जब उनके साथ काम किया तो पता चला ही वाज मालिक, एंड इसीलिए आई एम ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू डू वर्क विद दीज ग्रेट पीपल। पुलकित अमेजिंग, थैंक यू। राजकुमार आपके लिए सवाल होगा मेरा कि लोगों ने निभाया है गैंगस्टर का, और वो उस नाम से जाने जाते रहे हमेशा, जैसे सरकार के लिए और अग्निपथ के लिए अमिताभ जी हो गए, नवाजुद्दीन हो गए, संजय दत्त हो गए खलनायक के लिए, तो अब इसके बाद से आपको लोग मालिक के तौर पर जानेंगे, तो वो एक कैसा आपके लिए गैंगस्टर को प्ले करना कितना चैलेंजिंग रहा, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस पर? बिकॉज आपकी भी एक छवि बदलने वाली है, जैसे सिमरन ने कहा कि मालिक के पहले और मालिक के बाद, तो वो कैसे आप उसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे? अरे थैंक यू सो मच, आई होप ऐसा हो, बिकॉज हम यही चाहते हैं एज एन एक्टर कि लोग को आपका किरदार, आपका काम याद रहे, कि काफ़ी आने वाले वक्त तक लोग आपको उसमें उस कैरेक्टर के नाम से जाने, फिर एक और कोई ऐसी फिल्म आए कि फिर उस कैरेक्टर के नाम से जाने। बट आई एम वेरी एक्साइटेड एज आई सेड कि हम लोगों को सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम सब को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस फिल्म के लिए, बिकॉज हम सब ने अपना 100% दिया है इस फिल्म को। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छे से डायरेक्ट की है, 1988 पीरियड ड्रामा है, डायलॉगबाजी है, जैसे हमने कहा कमर्शियल फिल्म विद एस्थेटिक्स, मतलब वो रियलिज्म भी है उसमें कि आप जाएंगे तो वो बिलीव करेंगे आप इस कहानी को कि हाँ ये हो रहा है मेरे सामने, विद लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो इसकी वही आई थिंक खूबी है इस कहानी की। तो आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट 11 जुलाई जब पहली बार मालिक आएगी सिनेमा घरों में, और मुझे भी लोग ऑडियंस पहली बार इस रूप में देखेगी। आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू नो कि लोगों का क्या रिएक्शन आता है। We are taking just 2 more questions, okay? And we'll wrap this up. Thank you so much for being so amazing. जी। मानुषी जी, मैंने सुना कि इस फिल्म में आपने अपने मालिक के लिए आटा गूंथना भी सीखा है, तो थोड़ा सा अगर आप बता सकें। वो मेरा मालिक नहीं है, वो सबका मालिक है। मैंने आटा गूंथना, इनके तो पति देव हैं। हाँ, देवता समान मालिक। बट नहीं, मतलब फिल्म के लिए सीखा नहीं, बट जस्ट कि आई मीन ओके, नो शेम इन दैट। नॉर्मली हम नहीं इतना जिस तरह के काम शालिनी शायद करती है, नॉर्मली मैं अपनी रियल लाइफ में उतना नहीं करती, तो जस्ट टू फील नेचुरल इन दैट कैरेक्टर कि मैनरिज्म्स हैं, टू फील लाइक यूर अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड। अगर आप घर पे हैं तो आप कुछ काम कर रहे हैं, तो जस्ट तो कुछ सीखना नहीं पड़ा, बट जस्ट टू गेट कंफर्टेबल इन दैट एनवायरनमेंट। So we used to just think about it, discuss it. तो उसमें used to think about it a lot. तो क्या हम ऐसा माने कि विश्व सुंदरी जी को गोल वाली? मुझे रोटी बनानी आती है, बहुत अच्छी आती है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। ये आपका अब ऐसा मानो मत, ऐसा है। हाँ, और मैं घर पे खाना बनाती हूँ। One last question. राजकुमार जी, हाल ही में राजकुमार जी, हाल ही में आपने भी सुना होगा कि MS धोनी ने, महेंद्र सिंह धोनी ने, उनका जो टैग नाम है कैप्टन कूल, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया जिससे कि कैप्टन कूल ये कोई और ले ना सके, छीन ना सके, कॉपीराइट करवाया। क्योंकि अब आप मालिक हैं तो आपको पता ही हर किसी को इस दुनिया में मालिक ही बनना है, तो क्या आप ये मालिक नाम भी रजिस्ट्रेशन करवा के अपने पास रख लेंगे? सर ये तो इनके पास रजिस्टर है ऑलरेडी। हाँ, ये किसी और को मालिक ना बनाए इस बात का मैं ख्याल रखूंगा। वो गारंटी दे रहे नहीं बनाएंगे। राज, हाय। हाय। तो जैसा सब कह रहे हैं और हम सब की आपको पहली बार इस तरह का जो गैंगस्टर अवतार है सब पहली बार देख रहे हैं। ये जो फिल्म है वो 80s में सेट है, और 80s में गैंगस्टर का जिक्र आता है तो मिस्टर बच्चन का जिक्र तो लाजमी है। मतलब हम अगर कह सकते हैं कि बिग बी सिंड्रोम से आप बच नहीं सकते हैं अगर आप
80s में गैंगस्टर प्ले कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, बिकॉज वो फिल्में तो आपने एक्टर बनने से पहले से ही देखी हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो किरदार आपके जहन में भी आए क्या, दीवार के या जब प्ले कर रहे थे मालिक? नहीं, ऑनेस्टली नहीं, सबकॉन्शियसली नहीं आए, पर क्योंकि जैसे आपने कहा वो दौर ऐसा है कि बच्चन साहब का बहुत क्रेज था, अभी भी है, इसलिए वो सब हमारे लेजेंड हैं हम सब के लिए। लेकिन इस फिल्म में भी हाँ वो एक झलक है हल्की हल्की, कैसे उस दौर में बच्चन साहब का इतना पागलपन था पब्लिक में, तो इसमें भी बहुत सारे जो है गुस्सैल जवान आदमी है। ये गुस्सैल जवान आदमी आजकल की फिल्मों में हम वापस से बहुत ज्यादा देख रहे हैं, जैसे किसी ने पुष्पा और केजीएफ का भी जिक्र किया, वायलेंस थोड़ा ज्यादा अभी देख रहे हैं। आप खुद एज अ दर्शक ये घोरी एक्शन एंजॉय करते हैं? नहीं, एज लॉन्ग एज उनमें कहानी अच्छी है, किरदार अच्छे हैं, और मुझे पता है, मैं इतना समझदार हूँ कि ये एक फिल्म है, ये मैं एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूँ, तो हाँ अगर अच्छे से बनाई हुई है तो आई डोंट माइंड, एज लॉन्ग इट्स नॉट वेरी अनकंफर्टेबल, देन या आई एम अ बिग फैन ऑफ एक्शन जॉनर माई सेल्फ। यस, थैंक यू सो मच। देखा है जामतारा आपने किया है, 10th फेल किया है, 12th फेल किया है, जामतारा किया है। इज इट लाइक अ कंफर्ट जोन ऑफ योर्स, जिसमें इसमें नॉर्थ बेल्ट के ही है, वो भी कैरेक्टर नॉर्थ बेल्ट का ही है? इज इट कंफर्ट जोन वेयर यू रियली एक्सप्लोरिंग, और कि कुछ और भी किरदार हैं जो आप आगे एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे, क्योंकि सब वैसे ही यूपी नॉर्थ साइड वैसे ही सारे किरदार अब तक हमें नजर आए आपके? आप सही हैं, लेकिन देखिए आप जहाँ से होते हैं उस चीज में जबान छोड़ के बाकी किरदार तो अपने हिसाब से अलग होते हैं, पर सिर्फ जबान एक ऐसी चीज हो सकती है जहाँ पे मैं कंफर्टेबल अपने आप को मान सकता हूँ कि नॉर्थ जोन के कैरेक्टर्स में। अब मेकर्स अगर जो जिस तरीके का काम मुझे देंगे, मैं तो हर एक तरीके का